सर आपका माइक बंद है। Okay, now is it audible now? Sai Ram. So one principle we discussed that was Sai Ram, utmost good faith, and today we have to discuss remaining principles of insurance. So let me share the screen. Chrome tab. Share. Okay. This is your book, NCERT book. You can see. So this is the functions of insurance we have discussed, and this is the first principle we discussed, that is the principle of utmost good faith. What did we discuss in this principle? Who will tell? Aditi, what is the meaning of this principle? Sir, What this did you principle understand? states that both the party insurer and the insured should discuss all the facts correctly, accurately, and completely. They should not give any false information. Okay, very good. So this principle And requires if this honesty. happens, the contract will be. Okay, very good. So this And principle, Hanji. Yes. So this principle requires honesty from both the parties of insurance. It requires that insurer and insured must disclose all the material facts to each other fully, honestly, and completely. है ना? Means they should not try to hide any material fact intentionally. Okay, so it is based on good faith or honesty. So this says a contract of insurance is a contract of Abe reme fidei, a French word है. That means a contract found on utmost good faith. No. The foundation of this contract is utmost good faith. Both the insurer and the insured. ना insurer means जो insurance कर रहा है वो, insured means जो insurance करा रहा है. Should display good faith towards each other in regard to the contract. है ना? So what they are supposed to do? It is the duty of the insured to voluntarily make full, accurate disclosure of all facts material to the risk being proposed, and the insurer to make clear all the terms and conditions in the insurance contract. So the insured must disclose all the material facts, whatever information is important for that assessment of the risk by the insurer, they must be disclosed by the insured. At the same time, insurer must also disclose, make clear all terms and conditions in the insurance contract. So this is the duty of both the parties, that they must disclose each and everything honestly, completely to each other. Thus, it is binding on the proposer to disclose all material facts about the subject matter of the proposer insured. Any fact which likely to affect the mind of a prudent insurer in deciding to accept the proposal of insurance or in fixing the rate of premium is material for this purpose. What I am saying, insured must disclose all the material fact. So what is the meaning of a material fact? Any fact that will affect the decision of the other party. Any insurer उसके बेस पे डिसाइड कर सकता है कि हम इंश्योरेंस करें या नहीं करें इस चीज का, या प्रीमियम कम रखें कि ज्यादा रखें, तो वो मटेरियल फैक्ट है. जैसे मैंने बताया, आपने गोडाउन में इंश्योरेंस कंपनी को बताया कि आपने व्हीट के बैग्स रखे हुए हैं, बट उसमें आपने साथ में पेट्रोल भी रखा हुआ था, और ये फैक्ट आपने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया. तो पेट्रोल रखा है, ये मटेरियल फैक्ट है कि नहीं है? इज इट मटेरियल फैक्ट और नॉट? इससे इंश्योरेंस कंपनी के डिसीजन पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सहीराम पड़ेगा, है ना? तो क्या होगा अगर आपने बोला कि उसमें व्हीट टैक्स है तो इंश्योरेंस कंपनी की रिस्क कम है, तो आराम से इंश्योरेंस कर देंगे, प्रीमियम भी कम रखेंगे. अगर आप बोलते हैं कि उसमें आपने केरोसिन के या पेट्रोल के क्वांटिटी कुछ रखी है, तो
दैट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो वो डिसाइड करेंगे कि इंश्योरेंस करना है कि नहीं करना, एंड दे आर एग्री टू डू इंश्योरेंस, देन डेफिनेटली द रिस्क इज हायर, देन दे कैन फिक्स हायर रेट ऑफ प्रीमियम। दैट इज ए मटेरियल फैक्ट दैट शुड नॉट बी हाइडेड। अब अगर दोनों में से कोई भी पार्टी कोई भी चीज छुपाती है जानबूझ के, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीगल इफेक्ट क्या होगा उसका? फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट बाय द इंश्योर्ड मेक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वॉइडेबल। अब यहाँ दो वर्ड आते हैं लॉ में, एक होता है वॉइड, VOID वॉइड, और एक होता है वॉइडेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंश्योरर। मतलब क्या है? इफ इट इज प्रूव्ड इन द लेटर इंक्वायरी that any material fact was intentionally not disclosed or hidden by the insured, then it is the choice of insurer whether to compensate for the loss or not to compensate. It's a voidable agreement, है ना? voidable means इंश्योरेंस कंपनी की मर्जी है, वो चाहे तो आपको कॉम्पेंसेशन देंगे अगर लॉस होता है तो, और चाहे तो नहीं दे, क्योंकि आपने डिसऑनेस्टी की, आपने सारे फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किए। So this contract will be voidable at the discretion of the insurer. इंश्योरर के हाथ में है कि अब वो चाहे तो दे सकता है आपको कॉम्पेंसेशन और चाहे तो नहीं दे। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? आप सोच के बताइए क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मली? वो देंगे कि नहीं देंगे? उनका फायदा किसमें है? नहीं देंगे सर। नहीं देंगे। नहीं देंगे तो नेचुरल बात है कि वो नहीं देंगे, है ना? देना चाहे तो दे सकते हैं, दैट इज देयर चॉइस, इट्स voidable, दिस एग्रीमेंट विल बी voidable at the discretion of the insurer. दूसरा प्रिंसिपल है वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल इंश्योरेंसेस वेदर लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। वो प्रिंसिपल सारे इंश्योरेंस में अप्लाई होता है ना? अब दूसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। दिस प्रिंसिपल डिसाइड्स दैट फॉर विच पर्सन और विच थिंग वी कैन टेक इंश्योरेंस, है ना? आप क्या डिसाइड होता है इससे कि किस पर्सन के लिए या किस प्रॉपर्टी के लिए या थिंग के लिए आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। दैट इज डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सो दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट द इंश्योर्ड मीन्स हु इज द इंश्योर्ड? सहीराम? The one who gets the insurance. The one who takes insurance policy, the one who takes insurance is insured. मैंने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराना तो मैं इंश्योर्ड हूँ, तो इट रिक्वायर्स दैट द इंश्योर्ड मस्ट हैव, नॉट शुड हैव, इट्स मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। द सब्जेक्ट मैटर मे बी ए पर्सन और मे बी ए थिंग। आप जिसका इंश्योरेंस करा रहे हैं सब्जेक्ट मैटर, उसमें क्या होना चाहिए आपका? यू मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये क्या होता है बाद में बताएंगे। पहली चीज क्या क्लियर हो गई? इफ यू वांट टू टेक इंश्योरेंस फॉर ए पर्सन और थिंग, यू मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट पर्सन और दैट थिंग। ठीक है? क्यों? व्हाई इट इज सो? वन फंडामेंटल फैक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट इट इज नॉट द हाउस, सेफ, machinery, potential liability of life that is insured, but it is the pecuniary interest of the insured in them which is insured. अब इन मीनिंग बता रहा है यहाँ पर, what is the insurable interest? Insurable interest means some pecuniary interest in the subject matter of the insurance contract. Means what? The insured must have an interest in the preservation of the thing or life insured, so that he will suffer finally on the happening of the event against which he is insured. अभी समझो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इसको सिंपल भाषा में समझे तो क्या हो सकता है कि हाउ टू डिसाइड वेदर आई हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दिस लाइफ ऑफ दिस पर्सन और इन द प्रॉपर्टी और नॉट। तो सिंपल है, you have pecuniary interest means that in the subject matter the insured must have an interest in the preservation of the thing or life. अगर वो चीज सेफ रहती है, that thing is preserved or that life is preserved, then you have
interest or your benefit. If that property or that person is lost, then you will be in a financial loss. तो सीधी बात क्या है कि आपको पूछना है कि if this person dies, will I be in a financial loss, or if this property is lost, will I be in a financial loss or not? पर्सन को छोड़ दीजिए, पर्सन में तो क्या है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप के बेस पर ज्यादा है कि कौन किसका इंश्योरेंस करा सकता है, दैट इज ऑन द बेस ऑफ रिलेशनशिप. तो वो नेचुरली मान लिया है कि जैसे हस्बैंड हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ के लिए इंश्योरेंस करा सकता है. वाइफ हैज द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द हस्बैंड, तो वाइफ हस्बैंड का इंश्योरेंस करा सकती है. पेरेंट्स हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन. तो ये तो नेचुरल रिलेशन के बेस पर डिसाइड होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इनमें तो माना ही गया है कि इनमें हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है. अब आउटसाइड लोग जो हैं जिनसे आपका फैमिली रिलेशन नहीं है, इंश्योरेंस करा सकते हैं, नॉर्मली नहीं करा सकते क्योंकि उनसे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा. मैंने पहले ही बताया था इंश्योरेंस इज नॉट मीन टू कॉम्पेंसेट इमोशनल लॉसेस एंड अदर टाइप्स ऑफ लॉसेस, इट इज ओनली टू कॉम्पेंसेट द फाइनेंशियल लॉसेस. तो बाकी लोग का इंश्योरेंस नहीं करा सकते, बट इन सम कंडीशंस यू कैन टेक इंश्योरेंस फॉर अदर्स. जैसे आपने किसी आदमी को 5 लाख रुपए का लोन दिया है, तो अगर उस आदमी की डेथ हो जाती है तो आपको लॉस होगा कि नहीं? चांसेस हैं लॉस होने के. सही राम? यस सर. Yes, sir. क्या लॉस हो सकता है आपको? If that person will die, then who will pay that money that you have given as a loan? है ना, that is the risk. तो आपके लोन के अमाउंट के बराबर आप उस आदमी का इंश्योरेंस करा सकते हैं, भले ही वो आपके फैमिली का मेंबर नहीं है, बिकॉज यू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ दैट पर्सन अप टू द अमाउंट ऑफ लोन. तो ये तो हो गया लाइफ इंश्योरेंस. बाकी जो भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराना है, किसकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा सकते हैं आप? द प्रॉपर्टी इन विच यू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट. मीन्स हाउ टू जज? सिंपल क्वेश्चन, इफ दैट प्रॉपर्टी इज लॉस्ट, विल यू बी इन ए फाइनेंशियल लॉस और नॉट? अगर वो प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है बाई फायर, बाई वाटर, देन यू विल बी इन ए फाइनेंशियल लॉस और नॉट? इफ आंसर इज यस, डेफिनेटली यू हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट एसेट और दैट थिंग. है ना? मैंने आपको बताया था आपकी कार है तो आपकी कार का इंश्योरेंस करा सकते हैं. क्या आप करा सकते हैं? क्यों करा सकते हैं? क्योंकि अगर वो कार लॉस हो गई, चोरी हो गई, तो आपको फाइनेंशियल लॉस होगा. पड़ोसी की कार का इंश्योरेंस आप करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते. क्यों नहीं करा सकते? If your neighbor's car is stolen, then you will not be in a financial loss. There may be emotional attachment. मैंने बताया था ना, इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है. बड़ी अच्छी कार दिखती थी, पड़ोसी की आती तो अच्छा लगता था, शाम को पड़ोसी बैठ गया था तो हमको भी कभी कभी ले आता है. मे बी इमोशनल अटैचमेंट, है ना? बट विल इट लीड टू ए फाइनेंशियल लॉस टू यू? नो. That's why you cannot get the insurance for the property of others. है ना? So if you have the insurable interest, means that if you will suffer in financial loss, then you will be said to have the insurable interest in that property or that thing, and you can take the insurance. Now, if you take the insurance for a property or thing or person in which you do not have insurable interest, this contract will be a contract of gambling. It will not be a contract of insurance. तो अगर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या हुआ? दैट विल बी एज्यूम्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गैम्बलिंग. आपके गैम्बलिंग के लिए एक इंश्योरेंस कर रहे हैं, आपका कोई इसमें जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है. यू विल नॉट सफर फाइनेंशियल लॉस इफ दैट प्रॉपर्टी इज लॉस्ट. सो अब समझ में आया आपको कुछ? इंश्योरेबल इंटरेस्ट समझ में आया आपको? सही राम? Yes, sir. So these two are basic principles of insurance: utmost good faith and insurable interest. Whether it's a life insurance or it's a any other form of insurance, these two principles are applied in all types of insurances. So again I am reading this. The insured must have an insurable interest in the subject matter. Subject matter may be a person or may be a thing. No. One fundamental fact of this principle is that it is not the house or shape or machinery or potential liability of life that is insured, but it is the pecuniary interest of the insured in them which is insured. Insurable interest means some pecuniary interest in the subject matter of the insurance contract. What is the meaning of pecuniary interest? The insured must have an interest in the preservation of the thing or life insured. This is called.
insured must have an interest in the preservation of the thing or life insured. If that person is safe, you will be in gain, you will be in a financial gain, or if that property is safe, then you will be in gain, or your interest will be protected. आपका interest जो है वो सेफ रहेगा. So that he she will suffer financially on the happening of the event against. अगर इसके अपोजिट होता है, जो मैंने आपको बताया, सीधा डायरेक्ट लैंग्वेज में बोले तो अगर ये पर्सन और प्रॉपर्टी लॉस्ट होती है तो आपको लॉस होगा. दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट मैटर एंड द इंश्योर्ड. So if this relationship between subject matter of insurance and the insured exists, means that if the subject matter is lost, insured will suffer a financial loss. It means that insured has the insurable interest in that subject matter, means person or property. ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक और चीज है. एक तो पहली चीज तो क्या समझ लिया आपने कि इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर. इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो होना चाहिए, उसके बिना तो इंश्योरेंस करा नहीं सकते. कराएंगे तो दैट विल बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गैम्बलिंग. ठीक है. अब तीन इंश्योरेंस हम मानते हैं मेनली, 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. ब्रॉड क्लासिफिकेशन तो 2 है. क्या होता है, एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा जनरल इंश्योरेंस. अब जनरल इंश्योरेंस की जो ट्रेडिशनल ब्रांचेस थी वो तो अभी बहुत सारी ब्रांचेस आ गई हैं, लेकिन ट्रेडिशनल जो ब्रांचेस थी वो 2 थी, फायर इंश्योरेंस एंड वाटर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस, है ना. तो लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. इन जनरल इंश्योरेंस 2 ब्रांचेस, फायर इंश्योरेंस एंड मैरीन, MARINE, मैरीन और वाटर इंश्योरेंस. अब तीनों में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, है ना. जैसे इसमें दिया है, इन केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, insurable interest of the insured in the subject matter of the insured must exist at the time of happening of the event in order to name insurable interest. However, सॉरी इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है आपको समझने में, मैं बताता हूँ आपको. ये है, देखो यहाँ ठीक है. आप ऐसे समझो, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी. ठीक है. लाइफ इंश्योरेंस में कब होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी. हेलो, हाँ हाँ, तो क्वार्टर पे जाके घर पे जाके दे दो या वो भी, मैं तो क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन क्लास, तो भी नहीं आ सकता. तो नहीं, मैं स्कूल में कोई नहीं है अभी, मैं क्लास में जा भी नहीं सकता कहीं. तो फिर मैं, आप थोड़ा वेट करो, अभी 20 मिनट, 4:20 पे आ जाऊँगा मैं. 4:20 पे आपको मिल सकता हूँ. कौन से गेट पे खड़े हो आप? तो मैं बताऊंगा कैसे भी, मैं क्लास में होना भैया, यहाँ से वहाँ कैसे जाऊँगा. अभी देखता हूँ, थोड़ी देर वेट करो, ठीक है. या गेट पे दे दो आप, मैं गेट से ले लूँगा उनको. अच्छा ठीक है. ओके साईराम, सॉरी टू इंटरप्ट. नाउ इट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी. कब प्रेजेंट होना चाहिए, मीन्स दिस रिलेशनशिप ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट must be present at the time of taking policy. अब लिख लो पहले, insurable interest must be present at the time of taking policy in life insurance. It must be present at both the times, at the time of taking policy and at the time of happening of loss in case of fire insurance, है ना, and at the time of loss in case of water insurance. ठीक है, समझ में आया कि आपको नहीं समझ में आया कुछ?
लाइफ इंश्योरेंस में कब होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस में कब होना चाहिए? दोनों टाइम, एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ लॉस। वाटर इंश्योरेंस में कब होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ लॉस। ठीक है, अब समझो इसको। लाइफ इंश्योरेंस में इट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। इसका मतलब क्या हो गया? हस्बैंड वाइफ है दोनों, बोथ हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ ईच अदर, तो हस्बैंड ने वाइफ का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, और 1 साल बाद दोनों का डाइवोर्स हो गया और 2 साल बाद वाइफ की डेथ हो गई, तो क्या हस्बैंड को पेमेंट मिलेगा? उसका इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी कि नहीं करेगी? तो उसमें क्या बताया कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। तो जब पॉलिसी कराई तब वो हस्बैंड वाइफ थे कि नहीं सैराम? यस सर। है ना? तो उस समय वो हस्बैंड वाइफ थे, मीन्स उस समय उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, तो पॉलिसी वैलिड है। और अगर हस्बैंड प्रीमियम डिपॉजिट करता रहा कंटिन्यूसली तो उसको इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, 1 मिनट, आई टू अटेंड द कॉल। हेलो जी जी। हेलो ओके साईराम। साईराम। सारम सर। So this insurable interest must be present in case of life insurance at the time of taking policy, है ना? अगर उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट था, बाद में भले ही रहे चाहे नहीं रहे, समझ में आ रहा है आपको? दैट पॉलिसी विल रिमेन वैलिड, तो वो पॉलिसी वैलिड रहेगी। इज इट क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. In fire insurance, it must be present at both the times, at the time of taking policy as well as at the time of happening of loss. अब समझो, मेरा कोई गोडाउन है या मकान है, मैंने उसका फायर इंश्योरेंस कराया, ठीक है, और फायर इंश्योरेंस कराने के बाद मैंने 1 महीने बाद वो किसी को बेच दिया मकान अपना, और मेरे मकान बेचने के बाद 2 महीने बाद उसमें फायर हो गया, लॉस हो गया फायर से, तो क्या मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले सकता हूँ, क्लेम ले सकता हूँ इंश्योरेंस कंपनी से? सही राम? No, sir. No, sir. क्यों नहीं ले No, सकता? sir. क्योंकि कंडीशन क्या है कि आई शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट बोथ द टाइम्स, यानी जब वो इंश्योरेंस कराया तब भी मेरे ही मकान था, और जब उसका लॉस हुआ तब भी वो मेरे पास ही था, मेरी प्रॉपर्टी, तो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी। अगर वो इंश्योरेंस कराते वक्त तो मेरा मकान था लेकिन बाद में किसी और को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया, तो दैट विल नॉट बी, आई विल नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस, देन इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे कॉम्पेंसेशन टू मी। और जो वाटर इंश्योरेंस है उसमें क्या होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ लॉस। उसमें जब लॉस हुआ तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था कि नहीं था? अगर आपके उसके मालिक थे एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ लॉस, देन you will get compensation, otherwise not. So there are 3 conditions. In case of life insurance, insurable interest must be present at the time of taking policy. In fire insurance, it must be present at both the times, at the time of taking policy as well as happening of loss. And in water insurance, it must be present at the time of happening of loss. So that is the insurable interest, second principle of insurance. ठीक है? अब थर्ड प्रिंसिपल है इंडेमनिटी, है ना? इंडेमनिटी मीन्स टू इंडेमनीफाई। इट मीन्स दैट टू प्लेस द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन इन विच ही वाज बिफोर हैपनिंग ऑफ लॉस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? इंडेमनिटी मीन्स टू पुट द इंश्योर्ड इन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन द सेम पोजीशन, है ना, that he occupied immediately before happening of the event insured against या happening of loss। जैसे किसी आदमी के पास कार है और उसने कार का इंश्योरेंस कराया और उसकी कार चोरी हो गई, तो अब ये इंडेमनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि that person should be placed in the same position in which he was before happening of loss। लॉस से पहले उसकी जो कंडीशन थी, यानी उसके पास कार थी तो आप कार दे दो उसको, तो वो सेम कंडीशन में आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सही राम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद 2 ऑप्शन है आपके पास, आप या तो कार दे सकते हो उसको, इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो कार दे सकती है या कार की वैल्यू दे सकती है, तो वो सेम कंडीशन में आ गया ना कि नहीं आया? कार थी उसके पास, चोरी हो गई, अब जब चोरी हो गई नहीं मिली तो इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेशन देगी उसको, तो क्या मतलब है उसका कि ही विल बी प्लेस इन द सेम पोजीशन इन विच ही वाज बिफोर हैपनिंग ऑफ लॉस। अब समझो इसमें क्या है, ऑल इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दिस प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में केवल पहले वाले 2 ही प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, utmost good faith and insurable interest। Remaining principles are not applied or cannot be applied to life insurance। ये लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं हो सकते हैं, इम्पॉसिबल है। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। नंबर 1, इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट द पर्सन इन द सेम पोजीशन एज ही वाज बिफोर हैपनिंग ऑफ लॉस। क्या हम उसको किसी की डेथ होने के बाद सेम पोजीशन में ला सकते हैं इसमें वो लॉस होने से पहले था? सही राम? मतलब समझ रहे हो इसका मतलब क्या हो गया? सही राम? क्या हम किसी इंश्योरेंस कंपनी कैन मेक समवन अलाइव आफ्टर डेथ? No, sir. और कैन द वैल्यू ऑफ लाइफ बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? और क्या जिंदगी की कीमत पैसे में निकाल सकते हैं हम लोग? No, sir. No, sir. So that's why it is impossible, है ना? So this principle of indemnity is applied in all insurances except life insurance. So all insurance contract of fire or marine insurance are contract of indemnity.
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी? टू इंडेमनीफाई और टू कॉम्पेंसेट, है ना, टू इंडेमनीफाई और टू कॉम्पेंसेट. इट मीन्स दैट इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ द लॉस, इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पेंसेट द इंश्योर्ड फॉर द लॉस टुक प्लेस, है ना. पहली चीज समझ में आ गई. पहली बात तो क्या हो गई कि इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेशन कब देगी? If there is a loss, if there is no loss, insurance company will not pay any compensation. First thing, समझ में आ रहा है क्या आपको? It is not in case of life insurance. लाइफ इंश्योरेंस में तो बताया था आपको कि इंश्योरेंस कंपनी मस्ट पे सूनर और लेटर, या तो उसकी डेथ होगी तो देगी, या जो पीरियड है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पीरियड है वो एक्सपायर होगा तो देगी. बट इन जनरल इंश्योरेंस मींस except life insurance, insurance company will pay compensation only if the loss happens. So according to this principle, insurer undertake a promise to put the insured in the event of loss, अगर loss होता है तो, है ना, in the same position that he occupied immediately before the happening of the event insured against. तो जिसके अगेंस्ट में आपने इंश्योरेंस कराया उससे अगर लॉस होता है तो लॉस होने से पहले आप जिस कंडीशन में थे उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको ले जाएगी. मींस दैट विल कंपनसेट. इन अदर वर्ड्स, द इंश्योरर अंडरटेक टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर द लॉसेस कॉज्ड टू हिम और हर ड्यू टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड. ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है इसका. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज दैट इंश्योरेंस कंपनी विल पे कंपनसेशन in case of life insurance, in case of fire insurance or marine insurance or any other insurance except life insurance if there is a loss. अगर लॉस नहीं होगा तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कुछ भी नहीं देगी. जैसे एग्जांपल ले लो, किसी आदमी ने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, कार की कीमत 10 लाख है, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया तो आपने प्रीमियम दिया. पता है ना आपको, सबको इंश्योरेंस कराते तो हमको प्रीमियम देना पड़ता है. सही राम? यस सर. साईराम. यस सर. ठीक है, तो हमने प्रीमियम दिया सपोज 50,000 और हमारी कार का इंश्योरेंस कितने का है? 10 लाख का. ठीक है, और जितने भी जनरल इंश्योरेंस है एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर ए ईयर. 1 साल के लिए होता है. 1 साल के बाद फिर प्रीमियम जमा करना पड़ेगा और फिर उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तो जैसे किसी ने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया है, कार की कीमत 10 लाख है, उसने प्रीमियम जमा किया 50,000. 1 जनवरी को कराया, 1 जनवरी 2020 और 31 दिसंबर 2020 आ गया और उसकी कार को कोई लॉस नहीं हुआ, ना चोरी हुई कार, ना डैमेज हुई, कुछ नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी उसको? सही राम? सर एक बार रिपीट कर दीजिए. हाँ जी, सर एक बार रिपीट कर दीजिए. कोई बच्चे हैं कि आगे नहीं है? सम स्टूडेंट्स आर देयर और नॉट? सर एक बार रिपीट कर दीजिए. मैंने आपको बताया, जैसे कार, आपकी कार है, उसकी कीमत है 15 लाख मान लो. चलो, कार की कीमत 15 लाख है, ठीक है. आपने इंश्योरेंस कराया 10 लाख के लिए, कार की इंश्योरेंस कराया 10 लाख से, उसके लिए प्रीमियम जमा किया 50,000, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम जमा किया 50,000. अब जो इंश्योरेंस होता है 1 साल के लिए होता है. लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के इतने सारे इंश्योरेंस बस 1 साल के लिए होते हैं. अगेन यू हैव टू पे प्रीमियम, है ना. अब इस कार को 1 साल तक कोई लॉस नहीं हुआ. सपोज 1 जनवरी को आपने कराया, 31 दिसंबर आ गया, कार को कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी आपको? जितना हमने भरा है. आपने भरा उतना देगी. 50,000 भरा आपने, है ना. सर नहीं देगी. एनीवन एल्स? और कोई? सर नहीं सर नहीं देगी. हाँ, अगर मैंने क्या बताया, इफ लॉस, देखिए इन द इवेंट ऑफ लॉस, अगर लॉस होगा तो ही कॉम्पेंसेशन मिलेगा. लॉस नहीं हुआ तो आपने जो प्रीमियम दिया वो प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा. दैट इज टेकन बाय इंश्योरेंस कंपनी. क्योंकि वो किसके काम में आएगा? वो पैसा आपका जो आपने पैसा दिया, आपको लॉस नहीं हुआ तो किसको देगी इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा? अगर और किसी को लॉस हुआ होगा ना, सिमिलर, पता है ना, शेयरिंग ऑफ रिस्क है. कुछ लोगों की रिस्क बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, बट आप तो ये समझो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा. पहली चीज तो हो गई. तो पैसा कब मिलेगा आपको? अगर आपको लॉस होगा तो. हम लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना.
आप कितना कॉम्पेंसेशन देगी? सपोज करो आपकी कार चोरी हो गई, आपकी कार 15 लाख की है, आपने इंश्योरेंस कराया 10 लाख का, प्रीमियम जमा किया 50,000, अब कार की चोरी हो गई तो कितना देगी? सही राम? सर 10 आधा। lakh. आधा देगी। ओके, और कोई? सर उतना ही जितनी सर जितनी कार की प्राइस होगी। 15 लाख। जितना का प्रीमियम है उतना ही देगा। हाँ जी, 10 lakh. 10 10 लाख। lakh. ओके, 10 लाख, 50 लाख, हाफ अमाउंट। और कोई? एनीवन एल्स? Sir, 10 lakh. आप देखो, समझो थोड़ा सा। अब इस बंदे ने क्या किया, थोड़ा चालाकी की। इसकी कार तो थी 15 लाख की, और इंश्योरेंस कितने का कराया? 10 लाख का। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी 15 लाख देती है इसको, तो इसको अनड्यू एडवांटेज होगा ना, प्रॉफिट हो गया इसको। तो इंश्योरेंस कराया तो 10 लाख का ही, उसके लिए जो खर्चा किया वो तो 10 लाख का किया, लेकिन पैसा तो मिल गया 15 लाख। ठीक है। तो इसमें एक रूल है, इन केस ऑफ इंडेमनिटी, अकॉर्डिंग टू इंडेमनिटी, इंश्योरेंस कंपनी विल पे, आप याद रखो हमेशा ये चीज, क्या? एक्चुअल लॉस और इंश्योर्ड सम विच एवर इज लेस। कितना देगी? एक्चुअल लॉस और इंश्योर्ड अमाउंट और इंश्योर्ड सम विच एवर इज लेस। कितना देगी इंश्योरेंस कंपनी? तो एक्चुअल लॉस इस कंडीशन में 15 लाख का हुआ उसका, लेकिन इंश्योर्ड अमाउंट कितना? 10 लाख है। दोनों में कौन सा कम है? 10 लाख। तो 10 इंश्योरेंस लाख। कंपनी 10 लाख देगी उसको, क्योंकि 15 लाख देगी तो उसको अनड्यू एडवांटेज होगा। सो दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न प्रॉफिट, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन। इंश्योरेंस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न प्रॉफिट, टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, बट इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन। तो उसके लिए क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया और 5 लाख का लॉस हुआ, तो आपको 5 लाख देगी, 10 लाख नहीं देगी, क्योंकि अगर आपको 10 लाख दे दिया तो आपको फायदा हो गया 5 लाख का। ठीक है। और अगर आपने 15 लाख का 10 लाख का इंश्योरेंस कराया और आपका लॉस 15 लाख का हुआ, तो आपको 10 लाख देगी, क्योंकि अगर आपको 15 लाख देगी तो भी आपको अनड्यू एडवांटेज होगा। So insurance company will pay what I said, actual loss, है ना, and insured amount और insured sum, जितने का इंश्योरेंस कराया, which ever is less, इन दोनों में जो कम होगा वो देगी। ठीक है। So this is the contract of indemnity. This applies to all insurances except the life insurance. So Sairam, I am stopping presenting. We will continue to discuss these principles in next class, coming classes, and coming back to the meet. Okay, Sairam, now you can leave. Thank you. Sairam Sairam. sir. पेरेंट्स, थैंक यू सर।